یہ کہانی امریکہ کے ایک شہر لوزیانا کی ہے جہاں خطرناک سیلاب آ جاتا ہے۔ اس وجہ سے کچھ خطرناک قیدیوں کو ایک جیل سے دوسری جگہ منتقل کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ٹی وی پر مسلسل الرٹس جاری کیے جا رہے ہیں کہ شہر کو خالی کر دیا جائے کیونکہ سیلاب خطرناک صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ دوسری طرف ہم ایک کپل کو دیکھتے ہیں جو سیلاب کی زد میں آ چکا ہے۔ وہ ایک محفوظ مقام کی تلاش میں تھے۔ انہیں ایک خالی گھر دکھائی دیتا ہے، وہ اس میں پناہ لے لیتے ہیں۔ اندر آ کر وہ دروازہ بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پانی کے تیز بہاؤ اور ہوا کی رفتار کی وجہ سے وہ دروازہ بند نہیں ہو پاتا اور بالآخر ٹوٹ کر الگ ہو جاتا ہے۔ اتنے میں ایک ایلیگیٹر گھر میں داخل ہوتا ہے اور آدمی پر حملہ کر کے اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور پلک جھپکتے ہی اس کا کام تمام کر دیتا ہے۔ اسے کھانے کے بعد وہ دوبارہ واپس آتا ہے کیونکہ وہ اب اس عورت کو مارنے والا تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا اور اسے بچنے کی بہت کوشش کرتی ہے، لیکن یہ ممکن نہ ہو سکا۔ مگرمچھ اسے بھی پکڑتا ہے اور مار ڈالتا ہے۔ بڑے خطرے کی بات یہ تھی کہ یہ ایک مگرمچھ نہیں تھا بلکہ بہت سارے مگرمچھ اس فلڈ کی وجہ سے رہائشی آبادیوں کی طرف آ گئے تھے۔ اگلے منظر میں ہم ایک پرزنر وین کو دیکھتے ہیں جس میں قیدیوں کو ایک مقام سے دوسرے مقام پر فلڈ کی وجہ سے منتقل کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اس وین میں 2 پولیس آفیسرز اور 5 قیدی تھے۔ بارش شدید ہو رہی تھی، راستے بھی کلیئر نہیں تھے، یوں لگ رہا تھا کہ ان کا اپنی منزل تک پہنچنا ناممکن ہے۔ لہٰذا پولیس آفیسر یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ راستے میں آنے والے پولیس اسٹیشن میں رات سٹے کیا جائے اور صبح موسم کلیئر ہونے کا انتظار کیا جائے۔ وین میں موجود پرزنرز خطرناک قیدی تھے۔ یہ صورتحال انہیں اپنے لیے امید کی کرن نظر آ رہی تھی۔ وہ چپ چاپ بیٹھے حالات کا جائزہ لے رہے تھے۔ اس کے بعد وہ پولیس اسٹیشن دکھایا جاتا ہے جہاں یہ رات رکنے والے تھے۔ اس پولیس اسٹیشن کے انچارج ایک خاتون تھی اور اس کے ساتھ ڈیوٹی پر 2 پولیس مین ڈیوٹی دے رہے تھے۔ وہ ایک نہایت ذمہ دار آفیسر تھی۔ اس علاقے میں بھی فلڈ وارننگ آ چکی تھی۔ اگرچہ سیلاب ابھی آیا نہیں تھا، وہ اپنے ایک جونیئر کو بیسمنٹ کا دروازہ بند کرنے کا کہتی ہے جو کھلا رہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اندر پانی بھرنا شروع ہو چکا تھا۔ بیسمنٹ کے حالات تو بگڑ چکے تھے۔ دوسری طرف ایک پولیس آفیسر انچارج لیڈی شارف کو فون کر کے انفارم کرتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ قیدی لائے جا رہے ہیں جن کی سیکیورٹی ہمیں کرنا ہوگی۔ اب مکمل سیکیورٹی سٹاف نہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف وہ اپنے جونیئر کو دوبارہ بیسمنٹ میں بھیجتی ہے کہ حالات کا جائزہ لے کر آئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چھت کے راستے ایک بہت خطرناک مگرمچھ بیسمنٹ کی طرف داخل ہو چکا ہے۔ وہ پولیس آفیسر جیسے ہی بیسمنٹ میں پہنچتا ہے اس پر مگرمچھ کا حملہ ہو جاتا ہے اور پھر ہر طرف خون ہی خون۔ شیرف اس تمام حادثے سے مکمل طور پر غافل تھی۔ پھر ہم گنڈوں کا ایک گروپ دیکھتے ہیں جو پرزنر وین کے راستے میں گھات لگائے بیٹھا ہے۔ ان کا مقصد ان قیدیوں میں سے اپنے ایک ساتھی کو چھڑانا ہے، مگر جیسے ہی وہ پرزنر وین ان کی گاڑی کے سامنے آتی ہے وہ اپنا راستہ تبدیل کر لیتی ہے، جس سے وہ کافی پریشان ہو جاتے ہیں کہ انہیں ہمارے پلان کا علم کیسے ہو گیا۔ لیکن پھر انہوں نے پرزنر وین کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا اور وین کے پیچھے چل پڑے۔ وین پولیس اسٹیشن پہنچ چکی ہے۔ شیرف اور اس کا جونیئر باہر آ کر انہیں ریسیو کرتے ہیں اور انہیں اندر لے کر جاتے ہیں۔ پھر وہ ان مجرموں کا ریکارڈ چیک کرتی ہے۔ شیرف ایک خاتون تھی، اس پر وہ قیدی اس سے بدتمیزی کرنے لگتے ہیں، لیکن وہ بھی بہت اچھے سے جانتی تھی کہ انہیں کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ ان قیدیوں میں سے 4 قیدی تو نہایت بدتمیز تھے، لیکن ایک قیدی بہت خاموشی سے کھڑا رہا اور اس بات کو شیرف نے نوٹ کیا۔ اس کے بعد شیرف نے ان سب کو وارن کیا کہ اگر تم سب حالات کو سمجھتے ہوئے مناسب رویہ اختیار کرو گے تو ٹھیک، ورنہ تم سب کا انکاؤنٹر کر ڈالوں گی۔ اس کے بعد ان تمام خطرناک قیدیوں کو ان کے سیل میں بند کر دیا جاتا ہے۔ حملہ آوروں کا وہ گروپ جو پولیس وین کو فالو کر رہا تھا وہ پولیس اسٹیشن کے سامنے پہنچ چکا تھا۔ انہیں یہاں کے سیکیورٹی کے تمام حالات کا بہت اچھے سے علم تھا۔ انہوں نے پولیس اسٹیشن پر فائرنگ شروع کر دی۔ اندھا دھند فائرنگ سے سب پریشان ہو گئے۔
शेरिफ और उसके साथी एक महफूज जगह पर छुपकर जवाबी फायरिंग शुरू करते हैं। वो लोग पुलिस स्टेशन में दाखिल हो चुके हैं। वो पूछते हैं यहाँ कितने लोग हो, जिस पर शेरिफ हकीकत बता देती है, क्योंकि वो जानती है कि इतने सारे लोगों का मुकाबला नहीं किया जा सकता और वो खून खराबा भी नहीं चाहती। लीडर कहता है कि हम सिर्फ अपने साथी को यहाँ से लेने आए हैं और लेकर चले जाएंगे, कोई खून खराबा नहीं चाहते अगर तुम ताउन करो तो। दूसरी तरफ कैदियों की निगरानी पर मामूर पुलिस ऑफिसर फायरिंग की आवाज सुनकर गन लेकर ऊपर आता है और देखता है कि शेरिफ छुपी हुई है। शेरिफ उसे इशारा करती है कि वो खामोश रहे और कोई हरकत ना करे, लेकिन इतने में वो उन हमलावरों के सामने आ जाता है। हमलावर उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं, जिससे वो मौके पर ही हलाक हो जाता है। इसके रिएक्शन में शेरिफ भी उन हमलावरों पर फायरिंग करती है, जिससे उनका एक साथी शदीद जख्मी हो जाता है। लेकिन फिर वो और उसका साथी हमलावरों के सामने सरेंडर कर देते हैं और हथियार डाल देते हैं। हमलावरों का हेड शेरिफ से कैदियों के बारे में पूछता है, जिस पर वो उन्हें सेल में ले जाती है। सेल में कैदियों की निगरानी पर मामूर दूसरे पुलिस ऑफिसर्स इन पर गन तान लेते हैं। शेरिफ उन्हें ऐसा करने से रोकती है। बिलाखिर वो सब सरेंडर कर देते हैं। वो ग्रुप सिर्फ एक कैदी को छुड़ाने आया था और वो कैदी कोई और नहीं बल्कि वही खामोश खड़ा रहने वाला कैदी था। बाकी कैदी भी उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें भी छुड़ा लो, हम तुम्हारे साथी बन जाएंगे, लेकिन वो हेड इनकार कर देता है। उसके बाद वो सेल का दरवाजा खोलता है और उस खामोश कैदी को बाहर निकाला जाता है। वो आपस में मिलते हैं। बारिश बहुत तेज थी, इसलिए वो अभी बाहर नहीं जा सकते थे, लिहाजा उन्होंने इंतजार करने का फैसला किया। हमलावरों के साथी जिसको गोली लगी थी, उसका खून बहकर नीचे बेसमेंट की तरफ गया, जिसकी खुशबू सूंघकर मगरमच्छ अट्रैक्ट हुए और ऊपर आते हैं और आते ही उस पर हमला करते हैं और एक ही लम्हे में पूरा निगल जाते हैं। गुंडों का हेड शेरिफ को सीसीटीवी कैमरास की रिकॉर्डिंग डिलीट करने का कहता है, जिस पर शेरिफ कहती है कि बेसमेंट में तमाम सिस्टम पानी भर जाने की वजह से नकारा हो चुका है, इसलिए कोई रिकॉर्डिंग हुई ही नहीं। लेकिन वो इस पर एतबार नहीं करता और अपनी एक साथी को शेरिफ के साथ कंफर्म करने के लिए भेजता है। जब वो बेसमेंट में पानी भरा देखती है तो उसे यकीन आ जाता है। बेसमेंट में जाने पर शेरिफ पानी के अंदर एक फ्लैशलाइट देखती है और उसे वहां से लेने के लिए हाथ बढ़ाती है तो उसके हाथ में उसके अपने ही साथी का कटा हुआ हाथ आ जाता है, जिसे देखकर वो खौफ के मारे झटके से पीछे हटती है। वो दोनों समझ नहीं पा रही होती हैं और शदीद खौफजदा हो जाती हैं। इतनी देर में सीढ़ियों से मगरमच्छ नीचे उतरता है। लड़की मगरमच्छ पर फायरिंग का इरादा रखती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करती, मगरमच्छ उस पर हमला कर देता है और उसे घसीटता हुआ पानी में ले जाता है। शेरिफ भी पानी में फंस चुकी थी। मगरमच्छ उस पर भी मुसलसल हमले कर रहा था, लेकिन वो बहुत मुश्किल से दरवाजा बंद करने में कामयाब हो जाती है। इतनी देर में गुंडों का हेड अपने साथियों की तलाश में नीचे आता है, जहां खून और अपने साथी का कटा हुआ सर देखता है। उधर मगरमच्छ टनल के रास्ते पुलिस स्टेशन में दोबारा दाखिल हो चुका होता है। लीडर शेरिफ से अपने साथियों के बारे में पूछता है। शेरिफ बहुत बुरी हालत में थी, वो तमाम हकीकत उसे बता देती है। उतनी देर में हम देखते हैं कि मगरमच्छ सीढ़ियों के रास्ते ऊपर आ चुका है। पानी का बहाव भी बहुत तेज हो चुका है। वो दोनों भागते हुए सीढ़ियों के रास्ते बाहर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी देर में मगरमच्छ वहां पहुंच चुका होता है। मगरमच्छ लीडर के पांव पे हमला करता है और उसे अपने साथ घसीटते हुए ले जाने की कोशिश करता है। उसका साथी अगरचे उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मगरमच्छ एक ही झटके में उसे अपने साथ ले जाता है। एक दूसरा कैदी इस सारे सूरत हाल से बहुत परेशान था। वो शेरिफ को तमाम कैदियों को रिहा करने का कहता है और उस पर गन तान लेता है। दूसरा कैदी उसे समझाता है, लेकिन वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। वो सेल के दरवाजे का बटन प्रेस कर देता है, जिससे तमाम कैदी रिहा हो जाते हैं। वो बाहर आते ही शेरिफ पर हमला करते हैं, मगर शेरिफ बहुत बहादुरी से उनका मुकाबला करती है। वो कैदी जिसे गुंडे छुड़ाने आए थे, उसका नाम कोड था, सबको समझाता है कि हमें आपस में झगड़ा करने की बजाय सबको बचाने का सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मौजूद खतरा किसी एक के लिए नहीं है, हम सब इसकी जद में आएंगे।
वो उन 2 पुलिस ऑफिसर्स को भी रिहा कर देता है जिन्हें कैदियों ने बंद किया था। उसके बाद वो सब प्लान बनाते हैं कि क्या किया जाए। वो इस बात से भी आगाह थे कि ना सिर्फ मगरमच्छ मौजूद है बल्कि पानी का लेवल भी बढ़ता जा रहा है, जिससे हम सब मारे जाएंगे। मगरमच्छ को अंदर आने से सिर्फ इस दरवाजे ने रोका हुआ है, जो ज्यादा देर पानी का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और जल्द ही टूट जाएगा, और फिर मगरमच्छों को अंदर आने से कोई नहीं रोक सकेगा। वो ऊपर की तरफ कपड़ा बांधते हैं, उसे लटक कर सब एक एक करके ऊपर चढ़ते हैं और बाहर आ जाते हैं। आखिर में अंदर रह जाने वाला एक कैदी, जिसे ऊपर चढ़ने में मुश्किल पेश आ रही थी, वो पुकार पुकार कर दूसरे साथियों को मदद के लिए पुकार रहा था, लेकिन वो तो इतने खुदगर्ज हो जाते हैं कि उसकी मदद की बजाय वहां से निकलने को तरजीह देते हैं। मगरमच्छ भी अंदर आ चुके हैं, वो उस पर हमला करते हैं, पानी के अंदर ले जाते हैं और उसकी ये दर्दनाक मौत ऊपर खड़े सब देख रहे हैं। एक मगरमच्छ मुंह खोले ऊपर की तरफ बढ़ता है, जिसे पुलिस ऑफिसर गोली मार देते हैं। अब बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं था सिवाय वेंटिलेशन के। बिलाखिर वो उसके जरिए ऊपर की मंजिल तक आ जाते हैं। आगे क्या करना है किसी को कुछ मालूम नहीं था, मगर कैदी तो हर हाल में यहाँ से निकलना चाहते थे, क्योंकि वो ये जानते थे कि हालात बेहतर होने या बाहर से मदद आने पर उन्हें फिर जेल जाना होगा। दूसरी तरफ शेरिफ कोर्ट से बात कर रही होती है कि तुमने आखिर किया क्या था कि तुम यहाँ हो, जिस पर वो बताता है कि असल में वो अफगानिस्तान में था, जहाँ सीनियर ऑफिसर से झगड़ा होने पर नौकरी से निकाल दिया गया। उसके बाद बहुत से काम किए और फिर बदकिस्मती से बैंक रॉबर्स के एक ग्रुप के हत्थे चढ़ गया और मजबूरन उनका साथ देना पड़ा, और बैंक से निकलते ही वो अरेस्ट हो गया। शेरिफ एक बहुत गहरी निगाह से उसे देख रही थी। एक अलहदा सेल में 2 कैदियों को बंद किया हुआ था, जिनकी निगरानी 2 पुलिसमैन कर रहे थे। उनमें से एक कैदी की नजर इसकी गन पर थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मगरमच्छ ऊपर आ चुका था। उसने एक कैदी पर हमला किया, जिसके बाद शेरिफ और कोर्ट इस पर फायरिंग कर देते हैं। उसका फायदा उठाते हुए कमरे में बंद कैदी गन उठा लेता है और सबसे पहले निगरानी पर मामूर पुलिसमैन पर फायरिंग कर देता है। दूसरा कैदी इसे ऐसा करने से रोकता है। इस बीच मगरमच्छ उस कैदी को पूरा ही खा जाता है। भगदड़ मच जाती है और छत गिर जाती है। इसकी वजह से नीचे मौजूद कैदियों में से एक के अंदर लोहे की रॉड घुस जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। शेरिफ और कोर्ट इस मगरमच्छ पर फायरिंग करते हैं, मगर उसे तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक एक करके मगरमच्छ सबको ही मार डालता है। अब सिर्फ वहां 2 लोग ही बचे थे, एक शेरिफ और दूसरा कोर्ट। फिर अचानक हम देखते हैं कि गुंडों का हेड, जिसे मगरमच्छ अपने साथ ले गया था, वहां आ जाता है। वो किसी तरह उस हमले से महफूज रह जाता है। अब वो कोर्ट को वहां से निकलने का कहता है, जिस पर कोर्ट शेरिफ को भी साथ चलने का कहता है, लेकिन हेड कहता है कि उसके पास तो सिर्फ 2 ही स्पीड बोट्स हैं, तो शेरिफ नहीं चल सकती, जिस पर दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। इतने में मगरमच्छ उनके करीब आ जाता है। शेरिफ उसे मारने के लिए वहां पर ब्लास्ट कर देती है, जिससे वो पूरी बिल्डिंग जलकर राख हो जाती है। उस आग में गुंडों का हेड भी मारा जाता है, लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों सही सलामत स्पीड बोट पर वहां से निकल जाते हैं। जब वो दूसरी तरफ पहुंचते हैं तो शेरिफ कोर्ट को वहां से भाग जाने का कहती है कि मैं रिकॉर्ड में लिख दूंगी कि तमाम कैदी मारे गए, जिस पर वो मुस्कुराते हुए शेरिफ को कहता है कि मुझे अभी मत मारो, हम जरूर दोबारा मिलेंगे। ये कहकर वो दोनों अपने अपने रास्तों पर निकल जाते हैं।